Yeah, so let's start function. Just नॉर्मल फंक्शन हमने कर लिया था और आज डिफॉल्ट पैरामीटर कर लेते हैं कि डिफॉल्ट पैरामीटर व्हाट इट इज. बट जस्ट बिफोर डिफॉल्ट पैरामीटर we have one more thing which is called keyword arguments. What is keyword argument? So usually what happens ki we make function and we pass the data in the form of parameters. For example, like this is my function detail, and so I am making it, so I am using double star so that it can take our data in the format of pairs. Okay, then I will print the data. Let me show you. For example, we can say that detail और उसके अंदर पास करूंगा जैसे नेम इज इक्वल्स टू जॉन, ग्रेड इज इक्वल्स टू 12, कंट्री इज इक्वल्स टू यूएसए. ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड द कीवर्ड आर्ग्यूमेंट. तो इसमें अगर फॉर्म में डेटा देना है तो यू हैव टू टेक इट विद अ टू स्टार. इफ यू इफ यू डू नॉट नो हाउ मेनी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, इसको कीवर्ड आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, दैट विल बी पास टू योर फंक्शन एट टू एस्ट्रिक्स. So let me run. See, our keyword argument is stored in a dictionary and it is showing, right? तो अगर डेटा अगर हमको डेटा कंटिन्यूस डेटा है लाइक सिंगल सिंगल, if there is single element then you use this single star, but if it is in pairs then use the two star. Did you got it? Yes, sir. Oh, ठीक है. तो two stars we use when we have to take the data in the form of key pairs. ठीक है. Yeah, share your screen and please do this very fast. ओके सर, मैं हाँ, मोबाइल में हूँ, अभी अभी करती हूँ. Recording in progress. please share your screen. But cannot just start screen well. हाँ, share now.
Hmm. Fine. Run it. डेट है या डेटा? ओके. हाँ, दिस इज हाउ वी टेक द मल्टीपल पेयर्स. फाइन. Okay. So next we have default parameter. ठीक है. What is default parameter? The following examples show how to use default parameter value. If we call the function without argument, it uses the default value. Okay, default. This is default parameter. For example, I can show you the following example shows how to use a default parameter. See this one. If we call the function without argument, it uses the default value. You made a function and country, you set a value default Norway, and then you are printing I am from this country. Okay, first you are passing Sweden, so you are passing some country, so the country will be Sweden, and it will say I am from Sweden. See, if it is India, then it will say I am from India. But if you are not passing any value, then it will be this default value will be taken Norway. See, I am from Norway. ब्राजील लिखा तो ब्राजील से बिलोंग हो गया, अदरवाइज कुछ ना लिखते तो नॉर्वे हो जाता ऑटोमेटिकली. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो सर, और एक मैं यस और नो? नो सर। आवाज नहीं आ रही. नो सर। नो. और एक मैं डिफॉल्ट पैरामीटर समझ में आया? यस। क्या होता है इसमें? व्हाट डू वी डू? If you will call the function without argument, it uses the default value. यस, Uh, राइट. hmm. So So I any also example? Yeah, any example you want to show?
सर और एक बार मुझे समझाइए। या या एक और बार समझाऊं? यस सर। ओके। हाँ, लाइक while मेकिंग आवर फंक्शन आई मेड अ फंक्शन जिसमें यस सर। कंट्री की वैल्यू नॉर्वे है बाय यस। डिफॉल्ट, एंड वी आर प्रिंटिंग आई एम फ्रॉम दिस कंट्री। व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ कंट्री? कंट्री तो नॉर्वे रहेगी, ठीक है। नॉर्वे है। तो इफ यू कॉलिंग अ फंक्शन विद द कंट्री स्वीडन, तो अगर कंट्री का नाम आपने दिया तो दिस विल बी द कंट्री वैल्यू विल बी स्वीडन। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज प्रिंटिंग आई एम फ्रॉम स्वीडन। इंडिया दिया तो इट विल बी इंडिया। इंडिया। बट अगर कुछ नहीं दिया तो? डिफॉल्ट था ना, इसलिए वो कॉल किया नॉर्वे को। थैंक यू। हाँ, डिफॉल्ट वैल्यू विल बी द नॉर्वे। यस। हाँ ठीक है, ठीक। हो गया। हम्म। ओके, नाउ कॉल इट। हाँ।
कैसे? ओके ओके। ओके, so next is default parameter we have done. यस। हाँ, तो now recursion. ठीक है, आई एम टेलिंग यू व्हाट इज recursion. Recursion is like, just let me share my screen first. What is recursion? So Python also accept function recursion, which means a defined function can call itself. फंक्शन अपने आप को कॉल कर सकता है, दैट इज अ रिकर्जन. Recursion is a common mathematical and a programming concept. It means that a function call itself. This has a benefit of meaning that you can loop through data to reach a result. For example, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे आई एम हैविंग वन रिकर्सिव फंक्शन नाम से मैंने एक डेटा बना दिया, फंक्शन बना दिया, विच विल टेक एन नंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इफ the length of the this n is, अगर दो से छोटी है, मीन्स अगर वन है, दो से छोटी है, जस्ट नेबर। तो वी विल प्रिंट दी n. अदरवाइज वी विल रिटर्न. तो यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल कॉल दिस फंक्शन अगेन, रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करेंगे, और यहाँ पे डेटा दोबारा पास करेंगे n-1. जस्ट 1 मिनट, तो यहाँ पे एक बार हम लोग प्रिंट भी कर लेंगे हमारा डेटा क्या है. तो मैं बताता हूँ कि क्या करा है मैंने यहाँ पे. पहले लेट मी रन इट. माय रिकर्सिव फंक्शन का नाम क्या है, रिकर्सिव फंक्शन. इफ आई एम पासिंग 10, लेंथ ऑफ एन. ओके, इंटीजर वैल्यू की लेंथ तो होती नहीं है. ओके वेट, हाउ वी कैन डू दिस. इफ दिस नंबर, ओके डायरेक्ट एन से कंपेयर करता हूँ. ओके, इफ एन इज लेस देन 2, देन दिस. if n is gone beyond the print, and return and print, wait, यहाँ पे return and that's it. See this one, यहाँ पे 10, 9, 8, 7 प्रिंट हो गया. ठीक है, देखो सारे नंबर यहाँ पे प्रिंट हो गए, 10 से शुरू हुआ और एक एक कम होता गया. तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे 10 पास किया, तो 10 यहाँ पे गया,
और चेक किया कि 10 2 से कम तो नहीं है, यहाँ भी 2 से कम नहीं है, तो 10 प्रिंट हो गया, यहाँ देखो। और उसके बाद फिर क्या हुआ, रिटर्न। ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, ये खुद को कॉल कर रहा है दोबारा। ठीक है, तो अब n-1 जाएगा, मतलब 10 - 1, मतलब कि 9 जाएगा। अब दोबारा से फंक्शन कॉल हो रही है, अब n की वैल्यू होगी 9, राइट। टाइम। यस। यहाँ पे गया, इट विल दिस फंक्शन विल कॉल इट्स, so it will be 9 - 1। अब फंक्शन दोबारा खुद को कॉल करेगा, बट इट विल बी 8 दिस टाइम, एन की वैल्यू होगी 8, राइट। ऐसे, तो ऐसे ही ये बार बार एक एक वैल्यू कम करके खुद को कॉल करता रहेगा, और यहाँ पे प्रिंट होता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि इस वैल्यू की जो एन वैल्यू है उसकी लेंथ जी दो तो। से 2 से कम हो जाएगी। उस टाइम क्या होगा, एक टाइम ऐसा होगा कि 2 से कम हो जाएगी, उस टाइम जो एक्चुअल वैल्यू है एन की वो रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मतलब अगर अगर 2 से कम है एन, मान लो जैसे 1 है, तो यहाँ पे 1 इसके पास आ जाएगा। 1 आ गया, अब पिछले का 2 आया था, फिर 3 आया था, 4 आया था। थोड़ा सा इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, दिस इज रिकर्जन मीन्स कॉलिंग इटसेल्फ। तो ये फंक्शन खुद को कॉल करता रहता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिकर्जन। तो हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ सारी चीजें प्रिंट हो रही है। और रिकर्जन में ये लगाना मत भूलना कि एक एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आपको स्टॉप तो होना ही है, रिटर्न करके स्टॉप करो। नहीं तो अगर स्टॉप नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं ये रिकर्जन खुद को कॉल करते ही रहेगा बार बार। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जाके एक कंडीशन यू हैव टू गिव, सो दैट इट इट विल स्टॉप समवेयर। यहाँ मैंने प्रिंट नहीं किया, अगर मैं एन यहाँ प्रिंट कर दूँ तो यहाँ पे 1 भी आ जाएगा, 1 जो मिसिंग आ रहा है इधर, ये देखो, 1 से लेकर 10 तक सब प्रिंट हो गया। अगर ये फंक्शन को इफ यू कॉल विद अ डिफरेंट नंबर लाइक 30, तो 30 से स्टार्ट होगा। जी जी। या प्लीज यू कैन ट्राई दिस वन। या यू वांट ट्राई। हेलो। प्लस। हाँ,
तो रिकर्जन का एक फंक्शन विल यू राइट? यस सर। ओके। जी देखो, आपने वो वाला लगाया नहीं, इफ वाला कंडीशन, नहीं तो ये लूप बार बार चलेगा। कहीं तो रोकने के लिए इफ। इफ एन इज लेस देन 2। 2। 5 पे ही रोक दोगे तो फिर तो बस 4 तक चल पाएगा, उसके बाद चलेगा ही नहीं है। 1 तक ले जाना तो 2 लेस देन 2 लिखो आप। रुको, हेल्प चाहिए तो मैंने चैट में लिखा है फंक्शन, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम इट। सर यहाँ पर कौन प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो रहा हाँ, मैंने चैट में दे रखा है फंक्शन, यू कैन कॉपी। है? कुछ प्रॉब्लम है वो? हाँ, मैंने चैट में दिया है, हाउ टू राइट दिस फंक्शन, करेक्टेड। यही तो है, कुछ प्रॉब्लम हुआ।
नहीं नहीं, स्पेसेस नहीं दे रखे ना। स्पेसेस भी तो देने होते हैं बराबर। नहीं इधर नहीं, इधर इधर। अब जैसे इफ लिखा, अब इफ के अंदर कौन से कोड है? ये दो कोड हैं। ठीक है, अब इफ के अंदर, अभी आपने तो इफ के लेवल पे ही लिख दिया, तो ये इफ की दोनों लाइन इफ के अंदर थोड़ी नहीं गई। जब वो कंडीशन ट्रू होगी तो ये नहीं चलेंगे, क्योंकि ये तो बाहर है इफ के। अगर इन दोनों कोड को इफ के अंदर डालना है तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे देना पड़ेगा स्पेस। स्पेस दोगे तो इट विल बी लाइक कि दीज टू लाइंस आर इनसाइड दिस इफ। ठीक है। Yes, अब जैसे ये रिटर्न लिखा है आपने इधर, अब ये तो आपने बाहर लिख दिया, ये तो फंक्शन के बाहर चला गया। अगर इसको फंक्शन के अंदर करना है तो एक पेज तो दे, एक टैब दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्पेसेस का बहुत बड़ा रोल है इन पाइथन। यहाँ एक स्पेस मिला तो इट मीन्स दिस कोड इज इनसाइड द दिस फंक्शन। अरे एक मिनट मैंने ऐड किया था यहाँ पे, पेज आपने हटा दिया दोबारा। मैंने यहाँ ऐड किया था एक स्पेस यहाँ पे, आपने हटा दिया। sir. क्यों? वापस लगाओ स्पेस। हाँ अभी Okay. ठीक है। राइट। ओके फाइन। तो चलो, आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चन। ठीक है, बेस्ड ऑन दी, Yes. बेस्ड ऑन दी दिस वन, डिफॉल्ट पैरामीटर के क्या क्वेश्चन दे रहा हूँ। Yes, sir. ओके, ट्राई टू डू दिस वन। ये चैट।
हाँ, आई थिंक दिस इज इजी। और एक बार चैट शुरू कीजिए सर। चैट में देखो, मैंने दिया क्वेश्चन। मिला क्वेश्चन? मिला? डिफॉल्ट पैरामीटर क्वेश्चन है, इट इज इजी, ट्राई टू डू इट।
रन इट। नेम। वेट, फर्स्ट नेम तो लिए ही नहीं। क्रिएट अ फंक्शन फॉर्मेट नेम दैट टेक्स द फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम। आपने फर्स्ट नेम तो लिया ही नहीं। हेयर। इधर इधर इधर। फर्स्ट नेम। सुमित्रा आपने पास किया, तो यहाँ फर्स्ट नेम भी देख लेना चाहिए ना इस फंक्शन को। दो चीज लेगा ये, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। और दूसरा है लास्ट नेम। दूसरा पैरामीटर है लास्ट नेम। नहीं नहीं, ये फंक्शन दो चीज ले रहा है ना, एक फर्स्ट नेम भी लेगा, एक और कॉमा डाल के एक और लिखो, लास्ट नेम। दो चीज लेगा ना। हाँ। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। अगर लास्ट नेम नहीं डालेंगे तो महापात्रा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी तो लिखना चाहिए कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों प्रिंट हो इधर। आपने बोला फर्स्ट नेम प्रिंट होगा और दिखा दिया लास्ट नेम, ऐसा क्यों? अब फर्स्ट नेम बोला है तो फर्स्ट नेम दिखाना पड़ेगा ना यहाँ पे। हाँ। और व्हाट अबाउट द लास्ट नेम? एक चीज और, इतना ये चीजों को सबको ये एक ही लाइन में लिख दे तो ज्यादा सही रहता है यहाँ पे। सब चीजों को एक ही लाइन में लिख दो ना, ज्यादा सही रहेगा इधर। ऐसे करके, ऐसे दो दो लाइन करके, मतलब नाम तो एक ही लाइन में प्रिंट होता है ना पूरा, दो दो लाइन में थोड़ी ना होता है प्रिंट। और आपको फर्स्ट नेम तो देना ही देना है, यहाँ पे भी फर्स्ट नेम देना है। और सेकंड नेम आप वो ऑप्शनल है, उसकी जगह ये डिफॉल्ट कभी कभी जाएगा। फर्स्ट नेम तो लिखना ही लिखना है। ये तो कास्ट है, ये तो फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। हाँ।
नहीं नहीं, फर्स्ट नेम तो देना ही देना है। एक तो जरूरी है ही, वो तो देना ही है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, दो चीजें मांग रहा है यहाँ पे। एक तो देनी ही देनी है। लास्ट नेम भले ही ना दो क्योंकि उसके लिए डिफॉल्ट महापात्रा है, पर फर्स्ट नेम तो देना ही देना है। बिना खाली नहीं चलेगा। और एक लास्ट नेम भी दो, किसी किसी एक में। नहीं, इसी में दे लो, कोई दिक्कत नहीं है इस वाले में। यहाँ पे इधर ही दे लो। अलग 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 अलग। एक कंप्लीट हो गया। फिर कॉमा, उसके बाद सरनेम। दो चीजें पास कर रहे हैं ना, तो एक कॉमा भी तो डालेंगे बीच में। रन इट। रन दिस वन। ठीक। फर्स्ट नेम सुजाता और लास्ट नेम ऑटोमेटिक मानती। नहीं नहीं, यहाँ पे देखो, सुमित्रा और लास्ट नेम महापात्रा। सुजाता यहाँ मानती था तो मानती हो गया। और सुनीता कोई पास नहीं किया था लास्ट नेम, तो महापात्रा ऑटोमेटिक। जहाँ पास नहीं करोगे महापात्रा, वहाँ ऑटोमेटिक होगा, इसकी वजह से। ठीक है। बाकी और भी क्वेश्चन दे देता हूँ चैट में, सॉल्व कर लेना। हाँ, ये चैट। हाँ, दिस इज होमवर्क। दिस वन इज होमवर्क। हाँ, एक ही क्वेश्चन दिया है। ठीक है। ओनली वन क्वेश्चन आई हैव गिवन एज अ होमवर्क। Try to do it and we will meet in the next class now. Okay? Yes, sir. All right. Have a good day. Bye bye. Thank you, sir. क्लास एंड ऑब्जेक्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। Yes, sir.